Good morning students, welcome to our channel. Let's start our new chapter number 9, algebraic expression and its identities. Right? You already know about the algebraic expression. Algebraic expressions which are in the form of you can write it in variable and constant. Right? You can write it as with using of constant and variables. Now there are two terms, constant and variable. What does it mean? Constants, that mean the value of it will never be changed. For example, if we take the value of pi is equal to 3.14 or 22 divided by 7 or a is equal to 5 whatever, right? तो ये जो पाई की वैल्यू जो है it will never be changed. In any example, whenever you solve that particular example in mensuration, whenever you use pi, you will always take among these two value. Either you will use 3.14 or 22 by 7. So it will be never change. So this value is called constant. Now variable can be denoted by using any alphabet, right? For example, you can take it as generally we use x, y and z, right? Or you can take any alphabet to make algebraic expression, right? तो variable will be जो value जो होगी it will be changed, not be fixed, not be constant, right? So by using these two terms, constants and variable, we can make algebraic expressions, right? For example, 2x plus 3, this is your algebraic expression. Among this expression, variable is x and constant is 2 and 3. Here 2 and 3 are constant and x is your variable, right? 2xyz plus 5y. Here variables are x, y and z, right? X, y, z are the variable and 2 and 5 are constant. Now I think the basic concept of constant and variable will be clear. So by using this constant and variable, we can make any algebraic expressions, right? It can be like 2xy plus 1 or y plus 3 or 4x square. These all are called expression or algebraic expressions, right? Now the basic concept of algebraic expression can be used denoted by constant and variable terms. Now we are going to study about particular expressions, right? For example, if you have one expression 4x square plus 3y plus z, right? This is your one expression. In this expression, you have to find number of terms, number of factors and its coefficients, right? Before starting these terms, expression and factor, we make one definition of expression by using terms. There are infinite, or you can take many terms and make with difference them with any operators like plus or minus, right? तो दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स के बीच में आप कोई भी ऑपरेटर प्लस या माइनस रखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर देयर इज नो लिमिट फॉर टर्म्स. टर्म्स की कोई लिमिट नहीं है, एक भी टर्म हो सकता है, दो टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स होंगे. तो ये टर्म्स क्या है, तो आप यहाँ पर मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है तो वो एक्सप्रेशन को
आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4x² जो ऑपरेटर से हमने सेपरेट किए, ऑपरेटर्स दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन व्हाट आर जो होंगे वो उनके ऑपरेटर्स कहेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस जो भी होंगे वो क्या करेंगे कि टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है तो उसकी वजह से ये दोनों जो है 4x² एंड 3y वो सेपरेट हो गए, राइट। एंड यहाँ पर जो सेकंड प्लस लिखा है उसकी वजह से 3y एंड z को हमने सेपरेट कर लिया है। सो टोटल टर्म्स आर, तो कुछ एग्जाम जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, फैक्टर्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपका जो बेसिक कंसेप्ट जो है, टर्म्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहेंगे और कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर टर्म्स कितने हुए, देयर आर 3 टर्म्स, विच आर दे, यू कैन राइट इट हियर, 4x² फर्स्ट वाला टर्म, सेकंड 3y एंड लास्ट वन इज z। तो ये आपके 3 टर्म्स हो गए। नाउ फैक्टर्स दैट मीन्स द गिवन टर्म यू हैव टू फाइंड इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स दैट मीन्स यहाँ पर आप ये जो टर्म्स है उसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 4x², राइट। ये जो है x² जो है उसको आप फिर फर्दर कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन, तो 4 × x × x हो गए, तो ये उसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर सेकेंड वन जो है वो 3y है, तो उसके फैक्टर्स कौन से होंगे, 3 एंड y आर 2 फैक्टर्स ऑफ 3y टर्म। और z जो है वो z तो सिर्फ एक ही मतलब वेरिएबल है, तो उसको हम डायरेक्टली वो इसका फैक्टर ही हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने अभी प्रीवियसली बोला कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो है उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर x, y, z। यहाँ पर देयर आर 3 वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन एंड 2 कांस्टेंट्स विच आर दे, yes 4 and 3 are the 2 factors of this expression, right. Now the basic of terms and factors will be clear of you, right. फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अगर मान लो कि हमें कोई दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं, -4xyz² है, तो एक ये टर्म है, अब मुझे उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो सभी को सेपरेट कर लो। तो एक -4 जिसको हम कांस्टेंट कहेंगे, सेकेंड वन x हो जाएगा, थर्ड वन y होगा, लास्ट वन z², और इसको आप z × z भी लिख सकते हो, राइट। तो ये सारे -4xyz ये सारे जो हुए उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स एंड इट्स फैक्टर्स, राइट। नाउ द लास्ट वन, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, द कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाई टू एनी वेरिएबल is called coefficient. For example, we know that there are 3 terms, 4x², 3y and z, right. Now what is the coefficient of x²? Coefficient of x² is 4। x² के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 4 है, तो वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। Now what is the coefficient of y? It is 3. And now what is the coefficient of z is equal to 1. तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप उनके कोएफिशिएंट जो होंगे वो लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो बेसिक जो था टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट, वो आपकी एक्सरसाइज 9.1 के अंदर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर यू हैव टू फाइंड टर्म, यू हैव टू राइट टर्म्स, फैक्टर एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, राइट। टर्म्स किसे कहेंगे कि प्लस और माइनस जो सेपरेट कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे, आपके टर्म्स होंगे। टर्म्स कैसे बनता है, ये कौन सा टर्म्स जो है वो 4x² जो है वो आपका एक टर्म है,
तो टर्म कैसे बनेगा, मान लो कि ये 4xy जो है वो आपका एक टर्म ही है, ठीक है। तो कैसे बना वो, बाय यूजिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हियर 4 इज योर कांस्टेंट and xy is your variable, right? By using these two constant and variable, or you can multiply this constant and variable, you will create terms, right? चलो यहाँ पर हम फैक्टर्स जो होंगे, तो फैक्टर्स कौन से होंगे, 4x and y, right? x and y जो है वो आपके वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों की प्रोडक्ट दैट मीन xy का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 4 हुआ। तो यहां पर जो पर्टिकुलरली आपको पूछा जाएगा कि xy का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट कौन सा है, नहीं कि सिर्फ x का कोएफिशिएंट क्या है, राइट? कोएफिशिएंट की डेफिनेशन क्या बोली मैंने, द कांस्टेंट टर्म विच इज कांस्टेंट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल ऑफ एनी x स्क्वायर और y और z विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y और z एक्सेट्रा, राइट? तो जो भी टर्म्स होंगे, उनके जो टर्म्स होंगे, उनके जो कांस्टेंट्स के साथ जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर कोएफिशिएंट, टर्म और फैक्टर, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो बेसिक जो था, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे, वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है? तो अब हम आगे देखेंगे कि अगर मान लो कि जो एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स आर 1 2 3 वॉट एवर, तो ये जो एक्सप्रेशन जो होगा वो एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे वो आपको यहां पर सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो, राइट? तो मान लो कि कोई एक्सप्रेशन है, जिसका क्लासिफिकेशन आपको करना है, तो वो कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन? तो जो क्लासिफिकेशन करना है हमें, तो बाय यूजिंग नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर यूज टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन, बाय दिस मेथड यू कैन क्लासिफाई दैट एक्सप्रेशन. इफ देर इज वन टर्म देन विच इज कॉल्ड मोनोमियल. इफ देर आर टू टर्म्स then you can say that binomial. If there are three terms then you can say that expression as trinomial, right? If there is one term you can say that is monomial. If there are two terms then you can say that binomial. If there are three terms then you can say that trinomial. And if any expression have one or more than one terms then you can say that expression as polynomial, right? तो हम लिखेंगे यहाँ पर, if number of terms is 1 then it is called monomial, राइट? तो उसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे। यहां पर क्या लिखा है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितने होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। टर्म्स किससे कहते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड एनी वेरिएबल विच इज कॉल्ड टर्म्स, राइट? तो कोई भी टर्म्स ले लो आप। यहां पर मैं ले रहा हूं 4x माइनस 3z 4y स्क्वायर z, ठीक है? तो यहां पर ये सारे जो है वो एक ही टर्म्स है, राइट? यहां पर वेरिएबल दो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। इफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितने होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यहां पर 4x जो है वो एक ही टर्म है, माइनस 3z विच इज ऑल्सो वन टर्म, एंड 4yz विच इज ऑल्सो वन टर्म विच हैव टू वेरिएबल्स, राइट? सो यहां पर आपको टर्म्स को काउंट करना है। अगर टर्म्स अगर एक है तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल, राइट? नाउ सेकंड, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 2
अगर नंबर ऑफ टर्म्स आर 2 है तो जिसको हम कहेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 2y माइनस 3xyz प्लस 2z, 4x² माइनस 2/3yz, राइट। तो ये सब आप देख सकते हो कि यहां पर दो टर्म्स है, कौन से, 4x² और दूसरा 2y। यहां पर माइनस 3xyz एंड 2z, 4x² एंड सेकेंड टर्म इज 2/3yz। तो यहां पर आप हर एक एवरी एग्जाम्पल्स के अंदर देख सकते हो कि यहां पर देर आर टू टर्म्स, सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर दो ही टर्म्स होने चाहिए। आगे लिखेंगे इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, अगर 3 टर्म्स है तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल, राइट। ट्राइनोमियल का कोई एग्जांपल आप देख सकते हो कि 4x² 2y plus 1, here 1 is constant but it still it is count in terms, 3yz² minus 2z plus 4x²। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिए कि जिनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे 3 है। दोनों एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो कि 3yz² minus 2z plus 4x², there are 3 terms, so this expression is called trinomial. Now what about in general term? If any expression having one or more than one terms is called polynomial, राइट। अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं और जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, राइट। तो यहां पर हमारा जो कंसेप्ट जो था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन बाय यूजिंग इट्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन, अगर एक ही टर्म्स आ रहा है हमारा तो इसको मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म्स आ रहे तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म्स आ रहे हैं तो उनको ट्राइनोमियल्स कहेंगे। फ्रेंड्स मुझे बताओ नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, मैं यहां पर पूछ रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ माइनस 3xyz, कोएफिशिएंट ऑफ xyz is equal to what? Yes, minus 3. You have to take minus sign with 3, right? You have to consider negative value also for its coefficient, right? तो यहां पर जो भी कोएफिशिएंट, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा है उसका कोएफिशिएंट आपको लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां पर कोई एग्जाम्पल मैं रहा हूं minus 3y plus 3z. Now what is coefficient of x? Now what will be your answer? Here 4x² minus 3y plus 3z, which is already given you. Now what is the coefficient of x? Now check, there are 3 terms, among them there is no term which have variable x. Yes, this term has variable x, but the power of x is 2. So these two, x² and x, both are different variables, right? तो यहां पर आपका x² वाला टर्म है लेकिन x वाला एक भी टर्म यहां पर नहीं है, तो आपको पूछा गया है x का कोएफिशिएंट, लेकिन यहां पर तो x है ही नहीं, तो उसका आंसर क्या आएगा,
0 आएगा, x वाला कोई टर्म ही है नहीं, राइट। अगर मान लो कि आपको एक्स स्क्वायर पूछा होता तो आप लिख सकते थे 4। अगर z y का पूछा होता तो आप लिख सकते थे -3। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन जो था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड द कॉमन एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स, राइट। तो क्लासिफिकेशन हमारा क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म किसे कहेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जो है जिनके अंदर वेरिएबल के वेरिएबल जो है वो सेम होने चाहिए। वेरिएबल सेम होने चाहिए मतलब कि उनके एक्सपोनेंट जो अभी वो भी सेम होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं 3yz 4x² 3x -4y 3z 9x² 12x 16y -14z 9yz। चलो ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे, उनमें से आपको ये बताना है कि लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। लाइक टर्म्स किसे कहेंगे फ्रेंड्स? लाइक टर्म्स दैट मीन्स विच हैव कॉमन, विच हैव सेम वेरिएबल। वेरिएबल सेम होना चाहिए लेकिन उनके एक्सपोनेंट जो होंगे वो भी सेम होने चाहिए। दैट मीन्स लाइक टर्म्स आर दोज विच हैव which have terms which have common variable with same exponent, right? Common variable with same exponent। वेरिएबल सेम होना चाहिए और एक्सपोनेंट जो होंगे वो भी सेम होने चाहिए, तभी उनको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। तो ये जो मैंने कुछ टर्म्स जो लिखे उनमें से लाइक टर्म्स कौन से है वो लिखेंगे। तो 4xy जो है वो आप देख सकते हो कि xy वाला टर्म जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो उसको हम अनलाइक टर्म्स में लिख देंगे xy। 3yz, हाँ 3yz और 9yz जो है दे आर लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स के अंदर लिखेंगे 3yz एंड 9yz। सेकेंडली 4x², तो 4x² वाला कोई x² वाला टर्म है? हाँ यहाँ पर है। अब यहाँ पर x है और x² है, दे आर डिफरेंट। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, तो हमने अगर गलती से इसको लाइक टर्म्स के अंदर कंसीडर कर लिया तो वो आपका गलत होगा। मैंने क्या लिखा है कि कॉमन वेरिएबल होना चाहिए विथ सेम एक्सपोनेंट, उनका पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर दोनों जो होंगे वो डिफरेंट हो गए, तो इन दोनों को आप लाइक टर्म्स नहीं कह सकते। तो क्या आएगा 4x² और दूसरा टर्म क्या आएगा 9x² हो जाएगा। 3x एंड यहाँ पर 12x आएगा। नेक्स्ट -4y और दूसरा कहां पर है उसका 16y, तो ये हो गए लाइक टर्म्स। सिमिलरली 3z और दूसरा क्या आएगा -14z, दे आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। 9x is completed, 3x completed, 16y। So here are the some terms which are like terms, right? क्योंकि उनके एक्सपोनेंट पावर वेरिएबल और वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होंगे वो सेम होने चाहिए, राइट। अगर मान लो कि गलती से यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर y पे स्क्वायर है,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर y है, उसका एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ पर y है, उसका एक्सपोनेंट 2 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स में चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ छोटी चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। और अब एक्सप्रेशंस जो होते हैं, वो एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, वो आपको यहाँ पर सीखना है। अब मान लो कि कोई एक्सप्रेशन दिया है और उस एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है, एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ जो है वो बहुत इजी चीज़ है, बहुत ही आसान है समझने में, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस, कोई भी एक्सप्रेशंस दिया है उनका एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो आपको यहाँ पर समझना है। अब एडिशन मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विच आर लाइक टर्म्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज डन फॉर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होंगे उनका ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो कि यहां पर हम एडिशन करने वाले हैं, एड 4x² प्लस 3z प्लस 9, सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो हम लिखने वाले हैं 12x² माइनस 3z प्लस 2y माइनस 12। चलो ये दो एक्सप्रेशन हमने ले लिए। एक ही एग्जाम्पल के थ्रू हम ये सारी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाली मेथड जो है वो हम समझने वाले हैं। अब ऐड दिस एक्सप्रेशन विथ दिस, राइट। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपके जो एक्सप्रेशन जो है उनके टर्म्स जो है वो थोड़े बहुत सेपरेट स्पेस देके आप लिख दो, प्लस 9। अब क्या करना है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब करना क्या है, आपको एडिशन करना है। तो अब सेकंड जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उनके अंदर जो लाइक टर्म्स जो है उनके नीचे एग्जैक्टली लाइक टर्म्स लिखते जाओ। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन तो आपने लिख दी। नाउ द टर्म इज फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर जो भी टर्म्स है उनके अंदर जो भी लाइक टर्म्स जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में मिल रहे हैं उनके नीचे एग्जैक्टली लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12x² जो है उसके जैसा लाइक टर्म कौन सा है, यहाँ पर 4x²। तो एग्जैक्टली 4x² के नीचे में यहाँ पर 12x² लिखने वाला हूं। नाउ सेकेंड इज माइनस 3z। चलो यहाँ पर थोड़ा बहुत चलो 3z चलेगा। तो यहाँ पर z वाला टर्म ये है, यहाँ पर भी 3z वाला टर्म है, तो उसके एग्जैक्टली नीचे आपको क्या करना है, 3z लिख दो। नाउ फॉर 2y, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे ही हम कांस्टेंट टर्म लिखने वाले हैं। तो 9 के नीचे एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। स्टिल देयर इज वन रिमेनिंग टर्म इन सेकेंड एक्सप्रेशन इज 2y, राइट। तो यहां पर 2y लिख दो। क्या किया हमने, फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर जो भी टर्म्स फर्स्ट एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स होते हैं उनके नीचे हमने लिख दिए। तो 4x वाला जो था उसके नीचे 12x वाला, 3z के नीचे एग्जैक्टली माइनस 3z लिख दिया। 9 जो था वो प्लस में था, तो यहाँ पर माइनस 12 था, तो माइनस 12 को हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 2y टर्म रिमेनिंग है, तो वो कौन से एक्सप्रेशन का था, सेकेंड एक्सप्रेशन का टर्म था, तो हमने यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर लास्ट में लिख दिया। अब सिंपल जो एडिशन करते थे वो एडिशन करना है आपको। चलो 4x² 12x² कितने हुए, 16x² हो गए।
प्लस 3z एंड माइनस 3z, एक प्लस में दूसरा माइनस में, वो तो कैंसिल हो जाएगा। चलो यहां पर मतलब कि 0 लिख दिया। प्लस 9 माइनस 12, क्या होगा आंसर? -3 आएगा। एंड 2z जो था, सॉरी 2y जो था, वो तो सिर्फ एक ही टर्म्स था, तो उसको एडिशन में लिख दिया। तो उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सीक्वेंस में अगर लिखना है तो 16x² प्लस 2y माइनस 3, इट इज योर फाइनल आंसर ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो एक्सप्रेशंस दिए थे, उनका हमने क्या किया है? एडिशन कर दिया है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। मान लो कि आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हम यहां पर लिखने वाले 3y² 4xy प्लस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9x² माइनस 3y² प्लस 12xy माइनस 13। अब यहां पर क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल्स फ्रॉम दिस। कई बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन जो एडिशन में मैंने बताई थी, अब एडिशन में तो क्या होता है कि मान लो कि दो नंबर जो a एंड b है उनका एडिशन करना है, तो आप a प्लस बी करेंगे या b प्लस ए करेंगे, आंसर तो सेम आने वाला है। लेकिन यहां पर सब्ट्रैक्शन के अंदर डिफरेंट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि a माइनस बी एंड b माइनस ए आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था, दे आर इक्वल, राइट। तो सबसे पहले तो आपको समझ में अब आना चाहिए कि कौन से एक्सप्रेशन में से आपको कौन सा एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहां पर क्या बोला है कि सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस वन, मतलब ये एक्सप्रेशन में से आपको ये जो एक्सप्रेशन उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेथड विल बी सेम। सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको करना क्या है कि जो जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो वाला हम फर्स्ट लिखेंगे, यानी कि 9x² माइनस 3y² प्लस 12xy माइनस 13। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। उसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3y², मतलब कि ये एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करना है आपको मैं बता देता हूं। अब वही मेथड, लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखने हैं, मतलब कि 3y² जो है वो यहां पर नहीं है, x² वाला, तो यहां पर 3y² हम लिखेंगे। चलो माइनस 4xy वाला, तो ये xy वाला टर्म है तो उसके नीचे लिखेंगे एग्जैक्टली 4xy। प्लस 9 जो है वो हम यहां पर लिखेंगे। अब दो तरह से ये मेथड को सॉल्व कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलो यहां तक क्लियर है। अब ये 9x² वाला जो टर्म जो है तो उसका लाइक टर्म तो सेकंड एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो उसको तो एज इट इज लिख दो 9x²। चलो क्लियर। अब क्या करना है कि जहां पर सेकंड एक्सप्रेशन है उनकी जो प्रीवियस साइन जो है, यहां पर साइन 3y² की साइन क्या होगी, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा, तो उसको नेगेटिव कंसीडर कर लो। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव कंसीडर करो। ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करो। अब बाकी काम क्या बचा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाली जो नई साइन आपने जो लिखी है वो आपको ये सेकंड एक्सप्रेशन के टर्म्स के आगे समझनी है। प्रीवियस वन जो यहां पर जो प्लस था तो वो प्लस हमें नहीं समझना, क्या समझना है, -3y²। अब -3y² कितने हुए, -6y²। 12xy प्लस 4xy, साइन मैंने चेंज कर लिए, नई साइन जो आई है वही कंसीडर करनी है बोला। तो 12xy प्लस में था, 4xy उसको प्लस में करेंगे, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16xy। -13 -9 दैट मीन्स कितने आएंगे, -22, राइट।
तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन को अगर आपको मतलब कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको इस तरह सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, जिसमें क्या करना है, पहले आपको ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो लिख दो, प्लस 12xy माइनस 13। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन की साइन लगा दो। किसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये सेकंड जो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ पर लिख दो, माइनस 4xy प्लस 9। ठीक है, अब आप जानते ही हो कि फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिख दो, और ब्रैकेट के आगे अगर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टर्म्स होंगे उनकी साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो साइन चेंज करें तो ये प्लस माइनस में है, 3y² प्लस में होगा। अब जानते हो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या आएगा, 3y², ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 4xy, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो 9x जो लाइक टर्म्स जो होंगे उनको हम साथ में रखने वाले हैं। तो 9x² कोई अलग नहीं है तो उसको अलग कर दिया। अब क्या हुआ कि माइनस 3y² और यहाँ पर माइनस 3y² है। ठीक है, नाउ 12xy और यहाँ पर 4xy है, उनको भी साथ में लिख दिया। और कांस्टेंट बाकी जो बचे हैं वो टर्म्स को भी हमने लिख दिया साथ में। क्या होगा आंसर, 9x², ये दोनों माइनस है तो क्या होगा आंसर, माइनस 6y², ये दोनों प्लस में नंबर्स है तो प्लस होगा 16xy, और दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस 22। तो आप देख सकते हो कि ये वाला आंसर और प्रीवियस आंसर दोनों सेम ही है। तो इस तरह से आप जो एक्सप्रेशंस होंगे वो एक्सप्रेशन का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर नया स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ये वीडियो के अंदर हमने देखा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू मेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मतलब कि एक्सप्रेशन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर जो सीखे, वो सारे एक्सप्रेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होंगे वो हमारी जो एक्सरसाइज आएगी 9.1 उनके अंदर हम सीखने वाले। ठीक है, तो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आप खुद अपनी एक्सरसाइज जो है 9.1 वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर कहीं पर भी डाउट्स है तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स लाइन के अंदर आप भेज सकते हो ताकि उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाए। ठीक है फ्रेंड।